Most UPSC aspirants either ignore ancient India or overstudy it without any direction, and that's exactly why this subject becomes risky in prelims. The truth is, ancient India gives 2-3 predictable questions every year. If you prepare it strategically, it can become one of your safest scoring areas. In this video, I'll show you what to study and what to skip, and how to prepare ancient India strictly from a prelims point of view. And based on this exact strategy, I have designed a complete ancient history crash course priced at rupees 199, so that no serious aspirant skips this subject due to cost or confusion. If your target is UPSC Prelims 2026, watch this video till the end. The course link will be provided to you if you contact us on the given number which is given in the description. So let's start with the strategy that how we will cover this subject. So ancient history में अगर आप देखोगे, this is one of the most ignored subject. UPSC aspirants generally tend to ignore this subject. This subject can be a make it or break it subject if you strategically prepare it. In this subject, those who study it, prepare it, and correct few questions which are asked from this subject, they can take edge over others from this subject only. So this is one such subject which can provide you edge over others. So we will see the graph representation, like how many questions every year coming from this subject. So this is showing us from 2016 to 2025. Every year approximately 4 to 8 questions are coming from this subject. So I can say that this is the safe zone. From 4 to 8 questions you can expect from this subject. I would say 8 is more, but generally 4 to 5 questions are every year asked from this subject. So out of these 4 to 5 questions, I am not saying that you will be able to attempt all these 6 questions, all these 5 questions. I am saying that from this ancient history you can safely attempt 3 to 4 questions. Like if 6 questions are there, 3 to 4 questions will be doable. If 5 questions are there, I would say 3 questions will be doable. If 4 questions are there, you can attempt 2 questions out of those 4 questions. So you have to understand, every year there are 2 to 3 questions which are very tough to attempt. Even if you study n number of pages, you will not be able to attempt few questions from this subject. So you have to prepare it in such manner that you are gaining few extra marks over others. So you have to prepare from this perspective, like you have to complete 2 to 3 questions out of 5 to 6 questions which are asked in this subject. So this should be about a practical target about this subject. तो ये हमें पता चला. Next thing is, these 4 to 6 questions are used for prelims. Those who are not able to clear prelims, they know that what is the value of these 4 to 6 questions. If you are able to complete these 3 questions, they will provide you extra 6 to 7 marks. And many students, I have seen that they are not able to clear prelims just by 1 or 2 marks. So these 5 to 7 marks are going to make a huge difference. So this can be a differentiating factor for you. So this is one such thing. You can take the screenshot of this graph and you can stick it on your study table, so that you have a rough idea that how many number of questions asked every year. So let's see some graphical pie chart representation of this subject. We are comparing ancient history with other subjects, and we will know that how many number of questions are asked from this subject. So from 2016 to 25 we are taking this time period, and we will see that from economy there are 167 questions, from polity 167 questions, from current affair there are 141 questions, which is huge. From ecology and environment there are 134 questions, science and tech 107 questions, modern history 75 questions, Indian geography 73 questions were there, world geography 50 questions, medieval history 24 questions, art and culture 27 questions, and then there is this ancient history from which 42 questions have been asked.
These 42 questions are important for us. They can provide us an edge and we can ensure some good positive marks to clear the cutoff of prelims. So this is one such subject for us. So one more thing which is important, in every strategy video I tell major important themes which are important for the exam, from where questions are generally asked. So here also I am showing this graph, you can take the screenshot. From ancient history there are few topics from where majority of the questions are asked. So you have to prepare these few topics thoroughly, and other topics you can go through like in a simple manner, like how you study. You can just study other topics, but you have to thoroughly prepare these 4 topics. One is Indus Valley Civilization, from where 20% of the questions are asked. This is very important topic from this exam point of view. Then there is this Mauryan period, from where 26% of the questions are asked. Then this is Gupta period, from where 27% of the questions are asked. Time period is 2014 to 2025. And then there is one more topic, that is important places. So this is one such topics from where every year questions are asked, and they generally ask the Indus Valley sites or the caves. There are questions related to the sites mainly. So important places are important. These 4 topics constitute majority of the questions of this subject. So you can take this screenshot as well, and you can stick it on your study table as well. Next is we will see examples of PYQ theme repetition. तो जैसा मैंने बताया अभी कि PYQ से किस तरीके से थीम्स रिपीट होती हैं, तो आप देखो यहाँ पर एंशिएंट टाउन के बारे में पूछा गया है. ऑप्शंस में धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगम, रोपर. अगेन हड़प्पन साइट यहाँ पर पूछी गई है कि इनमें से हड़प्पन साइट कौन सी नहीं है. तो चानूदारो, सोहगौरा, देन कोटडीजी एंड देसलपुर. सो आप देख सकते हो कि ये सारे जो नेम्स हैं दे आर मोर ऑफ रिलेटेड टू द साइट्स. जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस वाला जो हमारी थीम है वो रिपीट हो रही है यहाँ पर. देन देर आर दिस आर्कियोलॉजिकल साइट, स्टेट और उसका डिस्क्रिप्शन कि ये जो साइट है ये कौन से स्टेट में पाई जाती है, और उसका डिस्क्रिप्शन कि ये ट्रेडिंग पोर्ट है या फिर चालकोलिथिक साइट है, मेगालिथिक साइट है या किससे रिलेटेड है. तो इस तरीके से इनाम गांव, सलीहुंडम एंड दिस चंद्रकेतुगढ़. तो इस तरीके से आप देखोगे कि क्वेश्चन यहाँ पर डिजाइन किए जा रहे हैं. आई वुड नॉट से कि दिस क्वेश्चन इज ईजी, बट अगर आपने साइट्स को अच्छे से तैयार किया है तो यू कैन समहाउ प्रिडिक्ट दिस क्वेश्चन कि किस तरीके से इसको आप टारगेट कर सकते हो. ठीक है. देन देयर इज दिस थीम रिलीजियस सेक्ट से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं. दिस गौतम बुद्ध यहाँ पर पूछे गए कि इनके जनरली इनको और कौन से नामों से जाना जाता है. फिर यहाँ पर बुद्धिस्ट सेंटर के बारे में पूछा गया है अगेन. ठीक है. फिर यहाँ पर अगेन रिलीजियस सेक्ट के बारे में पूछा गया है कि कौन से रिलीजियस फिलॉसफी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, कि कौन सी रिलीजियस फिलॉसफी में ये डिस्क्रिप्शन मिलता है. फिर यहाँ पर साइट्स के बारे में पूछ लिया, जो सैवाइट केव श्राइन है या फिर बुद्धिस्ट केव श्राइन है, जैन केव श्राइन है. तो इस तरह रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है. तो आप देखोगे कि इंपॉर्टेंट प्लेसेस अगेन इंपॉर्टेंट, अगेन रिलीजियस सेक्ट में बुद्धिज़्म इंपॉर्टेंट. तो ये हमें इस तरीके से देखना होगा. फिर मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न पीरियड, तो यहाँ पर आप देखोगे कि इंस्क्रिप्शन से क्वेश्चन पूछा गया है. तो कौन से यहाँ पर रूलर, सिंपल क्वेश्चन है कि किस रूलर ने अपने सब्जेक्ट्स को यहाँ पर एडवाइस किया था थ्रू इंस्क्रिप्शंस. तो जिसको आंसर पता होगा, जब हम PYQs करेंगे तब आंसर्स पर जाएंगे. अभी हमारा मोटिव आंसर बताना नहीं है, हमारा मोटिव है कि हमें पता चले कि हमारी थीम से किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं. तो 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया इंस्क्रिप्शन के थ्रू, किस रूलर ने यहाँ पर अपनी बात अपने सब्जेक्ट तक पहुँचाई थी. तो ऐसे ही क्वेश्चन आगे जाकर और इसकी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाई जा सकती है, कुछ और बातें पूछी जा सकती हैं, किसी पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन के बारे में पूछा जा सकता है. तो हु ऑफ द फॉलोइंग हैड फर्स्ट डेसिफर्ड द एडिक्ट्स ऑफ एम्परर अशोक. अब यहाँ पर फिर से अशोका के जो एम्परर अशोक थे, इनके जो एडिक्ट्स थे उनको किसने डेसिफर किया था, उनका नाम पूछा गया है 2016 में. फिर साइट ऑफ अशोकाज मेजर रॉक एडिक्ट्स, अगेन साइट इंपॉर्टेंट. प्लेसेस के बारे में धौली, एरागुडी, जौगढ़, कलसी, ये कहाँ पर लोकेटेड है, इनकी बस लोकेशंस मैच करनी है और आप पहुँच जाओगे आंसर तक. डुएबल क्वेश्चन, आई वुड से कि किया जा सकता था. दिस क्वेश्चन 2016 डुएबल क्वेश्चन.
अगेन दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन है। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। फिर यहाँ पर ट्रेवलर्स के जो अकाउंट्स हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फाइहान इंडिया में आए, चाइनीज़ पिलग्रिम जो थे ट्रेवल टू इंडिया ड्यूरिंग द राइन ऑफ, किसके टाइम पीरियड में, यहाँ पर कंटेम्प्रेरीनेस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिस इज़ वन सच थीम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया, जहाँ पर आपसे कंटेम्प्रेरीनेस पूछी जाती है कि किसी एक पर्टिकुलर इवेंट, किसी एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी को रिलेट किया जाता है उस समय के कंटेम्प्रेरी एम्परर के साथ में। तो इस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं। फिर अगेन चाइनीज़ ट्रेवलर युआन चोंग या फिर हेन सॉन्ग जो इंडिया विजिट करते हैं उनके बारे में यहाँ पर पूछा गया और उन्होंने क्या डिस्क्रिप्शन दिया उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है 2013, 2025। तो आप देखो कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फिर यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं, टर्म्स टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ये हुंडी के बारे में पूछ लिया है, कुल्ले बाप के बारे में, द्रोण बाप के बारे में। तो इस तरीके से टर्मिनोलॉजीज ऑल्दो दे आर टफ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये आसान है, ये आपसे आसानी से हो जाएगा। मैं आपको कोई हसीन सपने नहीं दिखा रहा हूँ कि आप बस कि इस सब्जेक्ट को पढ़ोगे और आपसे ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये जो क्वेश्चंस मैं दिखा रहा हूँ ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में जब आप बैठे होगे तो बहुत टफ क्वेश्चंस हैं, सबसे नहीं हो पाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस देख कर बस आप आइडिया ले सकते हो कि क्वेश्चंस पूछे जाने का ट्रेंड क्या है, तरीका क्या है। व्हाट आर द फेवरेट एरियाज ऑफ यूपीएससी, तो स्पेसिफिक टर्म्स हो गए, स्पेसिफिक थीम्स हैं, टॉपिक्स हैं, कुछ ही टॉपिक्स हैं जहाँ से ही वो टर्मिनोलॉजीज को भी पिक करता है, वहाँ से ही वो साइट्स को पिक करता है। इंस्क्रिप्शन को पूछ रहा है तो फिर वो मौर्यन पीरियड को ही टारगेट कर रहा है या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही टारगेट कर रहा है। टर्मिनोलॉजीज की बात हो रही है तो फिर किसी गुप्ता पीरियड की टर्मिनोलॉजीज की बात हो रही है। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट थीम्स हो जाती हैं जहाँ से हमारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये हमें समझना होगा। सो अभी तक हमने देखा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की दिस सब्जेक्ट कैन गिव अस एज ओवर अदर सब्जेक्ट्स। यहाँ से हम कुछ क्वेश्चंस को कम टाइम देकर इस सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं, बहुत कम टाइम देकर इस सब्जेक्ट को हम कवर कर सकते हैं। कवर करने के बाद आप इस सब्जेक्ट में गेन कर सकते हैं कुछ पॉजिटिव मार्क्स, और ये पॉजिटिव मार्क्स हमको हेल्प कर सकते हैं टू क्लियर द कट ऑफ। तो ये इस तरीके की बात हुई कि हम नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पर हमें 90 to 100% की एक्यूरेसी चाहिए, यहाँ पर हमें चाहिए 50 to 70% की एक्यूरेसी। 50 to 70 भी मैंने ज़्यादा ही बोल दिया, 50% की एक्यूरेसी भी है ना। अगर 6 क्वेश्चन है और आप 3 भी कर ले गए ना तो भी आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव होगा, ये एक बहुत ही आपको अच्छे मार्क्स गेन कराएगा ये सब्जेक्ट। तो इसलिए ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। बुद्धिज्म जैनिज्म जहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मौर्यन गुप्ता पीरियड इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, इंपॉर्टेंट प्लेसेस। तो यही कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ से आप मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस देखोगे जब भी आप PYQs को एनालाइज करोगे। और इन्हीं थीम्स को अगर आपने अच्छे से तैयार किया तो आपके आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक और साथ ही साथ आपके जो मिडिवल हिस्ट्री की जब हम स्टडी वीडियो बनाएंगे तो उसमें भी दिखाएंगे कि कौन से हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ कि हमारा इसमें सोर्स क्या रहने वाला है। वी मस्ट हैव सोर्सेज टू स्टडी दिस सब्जेक्ट। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास NCERT है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो पुरानी NCERT है, ऑल्दो अर्लियर स्टूडेंट्स यूज टू स्टडी द ओल्ड NCERTs फॉर हिस्ट्री, बट अब ये ट्रेंड चेंज हो चुका है। पिछले कुछ समय में देखा गया है कि NCERT जो है ना, न्यू NCERTs आर बिकमिंग इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ से जो थीम्स इन हिस्ट्री वाली जो बुक्स है ना, इनसे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से आ रहे हैं। तो आपको थीम्स इन हिस्ट्री वाली बुक हैं, इनको आपको पढ़ना होगा। इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने मार्क किए हैं, जहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिन एरियाज़ को PYQs में आप देखोगे उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको थीम्स इन हिस्ट्री से पढ़ना होगा। थीम्स इन हिस्ट्री 1 और 2 ये 2 बुक्स हैं, ये दोनों आपको पढ़नी होंगी। साथ में आपको जो फैक्ट वाला पार्ट है वो आप कवर कर सकते हो लूसेंट, जो जनरल स्टडीज, जो जनरल नॉलेज की बुक आती है। ऑल्दो दिस बुक इज़ मेनली स्टडीड बाय द SSC एस्पिरेंट्स, बट यहाँ पर जो एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री का जो फैक्चुअल पार्ट है ना, वो आप लूसेंट से बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो। तो आप रीडिंग के लिए, सब्जेक्ट को समझने के लिए, टॉपिक्स को समझने के लिए थीम्स इन हिस्ट्री को पढ़ेंगे, फैक्ट्स को तैयार करने के लिए आप लूसेंट से इसको पढ़ेंगे, और अपने इस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अवलोकन IAS की जो लाइव क्लासेस हैं वो आपको यहाँ पर हेल्प करेंगी फॉर वैल्यू एडिशन। और जो हमारी PYQ बेस्ड अप्रोच होने वाली है, जिसमें हम PYQs को एनालाइज करके अपनी क्लासेस को डिज़ाइन किया है मैंने, और इन्हीं क्लासेस में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से
जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं PYQs में कि उनको इन डेप्थ हम लोग तैयार करेंगे। फीस मैंने बहुत ही सोच समझ के अफोर्डेबल रखी है। यहाँ पर मकसद प्रॉफिट गेन करना नहीं है, एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाना है। हर एक स्टूडेंट तक ये कोर्स एक्सेसिबल हो। कई अटेम्प्ट देने के बाद या 2-3 अटेम्प्ट देने के बाद हर स्टूडेंट कोर्सेज को अफोर्ड नहीं कर सकता है। हर एक स्टूडेंट दिल्ली में आकर नहीं पढ़ सकता है। तो उनके लिए ये कोर्स एक्सेसिबल हो, अप्रोचेबल हो और अफोर्डेबल हो। तो इसलिए हमने इसके प्राइसेस को बहुत ही ज़्यादा डिसेंट रखा हुआ है। और ये कोर्स आपके लिए लाइव होने वाला है। लाइव क्लासेस के थ्रू आपको एंशिएंट हिस्ट्री कुछ ही क्लासेस में ऑलमोस्ट 15 to 17-18 क्लासेस में हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे इस सब्जेक्ट को। और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना सब्जेक्ट की, वो कई गुना इम्प्रूव हो जाएगी। फिर जब आप बुक पढ़ेंगे तो आप पाओगे कि यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट इन दिस सब्जेक्ट। क्लासेस को करने के बाद आप डायरेक्टली किसी भी टेस्ट सीरीज को आप अटेम्प्ट कर सकते हो और वहाँ पर आप कॉन्फिडेंस शो कर सकते हो और आप देखोगे कि आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हो। सो दैट इज़ वाई दिस कोर्स इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट। कई बच्चे बुक्स नहीं पढ़ पाते हैं घंटों तक बैठकर, पढ़ते भी हैं तो नहीं समझ में आता है उनके कि क्या चल रहा है, ये क्या स्टोरी है। तो यहाँ पर फाउंडेशन बिल्डअप करने का काम हमारा ये क्रैश कोर्स करेगा। बहुत ही इन डेप्थ हम इस सब्जेक्ट को कवर करेंगे। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है हिस्ट्री पढ़ाने का, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। मैंने हिस्ट्री कई लेवल्स पर पढ़ाया हुआ है। तो इसलिए जब भी आप इस कोर्स को एनरोल करेंगे आप देखोगे कि आपकी हिस्ट्री की जो नॉलेज है वो काफ़ी अच्छी, आपकी फाउंडेशन अच्छी होगी और आप इस सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस फील कर पाओगे। सो दीज 3 आर गोइंग टू बी द सोर्सेज फॉर यू। जो लोग क्लासेस को अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं ज्वाइन कर सकते, उनके लिए NCERTs प्लस लूसेंट ये 2 सोर्सेज होने वाले हैं। इसके अलावा जो हमारे टेस्ट होते हैं, जो आप टेस्ट लगाओगे, कुछ पार्ट लेंथ टेस्ट लगाओगे, उन टेस्ट के जो सॉल्यूशंस होंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस तरीके से आप इस सब्जेक्ट को कवर करेंगे। तो इस सब्जेक्ट को आइडियली आप 7 to 10 डेज में फिनिश कर सकते हैं। 7 to 10 डेज में इसको फिनिश कर सकते हैं। अभी भी अगर आप आज से शुरू करोगे, एंशिएंट हिस्ट्री से ही आप अपनी प्रिपरेशन प्रीलिम्स की स्टार्ट कर सकते हो। दिसंबर के कुछ दिन बचे हुए हैं, इन्हीं को ही आप टारगेट कर सकते हो कि एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ के साइड करनी है। जनवरी से आप दूसरा सब्जेक्ट उठा सकते हो। तो इस तरीके से आप इन बचे हुए दिनों में एंशिएंट हिस्ट्री को अपना जो बोझ है वो कम कर सकते हो और इस सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा मार्क गेन करने के लिए अपनी कोशिश कर सकते हो। सो दिस इज़ द अप्रोच। इस तरीके से आपको करना है। मैंने आपको PYQ शो किए कि कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। स्पेसिफिक टर्म्स हो गए, ट्रेवलर्स के जो कंटेम्प्रेरी ने से वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न पीरियड से कुछ क्वेश्चन आते हैं, रिलीजियस सेक्ट से हर साल क्वेश्चन आते हैं। PYQs का हमने रिपीटिशन देखा और जो मेजर थीम्स हैं हमारी, मॉडर्न पीरियड, गुप्ता पीरियड, IBC और इम्पॉर्टेंट प्लेसेस। अब इसमें हमारी जो एक रिलीजियस थीम है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, वहाँ से भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम दीज 4 एरियाज। तो ये हमें अच्छे से तैयार करनी है। साथ में हमने देखा एंशिएंट इंडिया का वेटेज कितना है, किस तरीके से आप इस सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी द अप्रोच। कोई भी कन्फ्यूजन है कोर्स से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, कमेंट में आप पूछ सकते हो। सारी कन्फ्यूजन को दूर किया जाएगा, पूरी हेल्प की जाएगी। अगर आप प्रीलिम्स की मेंटरशिप भी चाहते हो तो आप हमसे अप्रोच कर सकते हो। आपको पूरी डेली टारगेट्स दिए जाएंगे, पूरी हेल्प की जाएगी और आपको प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने में जो भी चीज़ें बाधा आ रही हैं उन रुकावटों को दूर करने की कोशिश की जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही अगले सब्जेक्ट की स्टडी लेकर आएंगे। स्टे ट्यून्ड टिल द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।